Good morning, dear kids. I'm taking your chapter 20 mensurations. I'll be starting with 20b. I've already started. I'll be taking some problems from 20b and some of your examples today. In your examples, I have noticed one problem which we can do today. It says a vessel is in a form of an inverted cone. It is filled with water to the brim. So you have a cone which is inverted and the water is filled to its brim, to its edge. Its height is 20, so I'll mark its height to be 20 centimeter, and the diameter is 16.8. Diameter is 16.8. That means radius will be half of diameter, that is 16.8 divided by 2, and that will make 8.4 centimeter. So you got height, you got radius. Now let's see what they are saying. Two equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. दो छोटे से कोन हम लोग ने इसमें ड्रॉप किए हैं, इसके अंदर डाले हैं. As a result, 1/3 of the water of the original cone overflows. तो आपने दो कोन्स डाले और इसका 1/3 of volume of water is overflowing. Okay, तो जितना पानी बाहर निकला, that will be the volume of these two cones, correct? Because of these two cones going inside the water, इतना सारा पानी 1/3 of the पानी निकला है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ volume of two cones submerged will be equal to 1/3 of volume of 1/3 of total volume of bigger cone. Yes, got my point clear? So 1/3 of pi r square h, because volume of cone is pi r square h. So you have to put 1/3 into 22/7. You have your radius with you, 8.4, and you have your height with you 20. And that will give you volume of two cones. जितना पानी बाहर निकला वो किसकी वजह से निकला? वो दो कोन्स के जाने की वजह से निकला. So that's the reason volume of those two cones, two small cones which are submerged inside the water will be equal to the volume, will be equal to 1/3 of the volume of total the bigger cone. Yes, got my point? तो volume of two cones आपके हाथ में आ गया. Clear? ये हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन. अभी इसका 1/3 निकालना है हमको. 1/3, ये जो 1/3 है ये फॉर्मूला का 1/3 है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट? सो ये जो वॉल्यूम आया आपका मल्टीप्लिकेशन और जो भी आपके डिवीजन करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई, इसका अब फिर से 1/3 आप निकालोगे एंड दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दीज टू कोन्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने पहले वॉल्यूम ऑफ पूरा कंटेनर, पूरा जो हम लोग का कोन था, बड़ा कोन, उसका वॉल्यूम निकाला. दिस इज द वैल्यू. आई टेल यू व्हाट वैल्यू यू विल गेट इट. यू विल गेट 1478.4 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर कोन. उसका 1/3 निकालोगे तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स विच आर सबमर्ज्ड. तो चलो इसका 1478.4 का 1/3 निकालते हैं. And that will be 492.8 centimeter cube, correct? So in this way you will get volume of two cones. अब आपको एक कोन का चाहिए तो डिवाइड बाय 2 कर दो. 492.8 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो you will get volume of per cone. ठीक है? Next I have problem number 11 of your textbook. Let's see what it says. The total surface area of a right circular cone of slant height. Slant height मतलब आपको L की वैल्यू दी हुई है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे L की वैल्यू. And the total surface area मतलब आपको TS से दिया हुआ है यहाँ पे 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट? 90 पाई. सो पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आपको पाई में ही रखना है. अब क्या करें? लेट्स सी व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर L plus pi
r square. Do you remember? If this is a cone, then you have total surface area जिसमें आपका आता है CSA और आपका आता है क्रॉस सेक्शन एरिया. Got my point clear? So CSA आपका pi RL, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका pi r square. So in that you can take pi r common and inside will be L plus R. In this way you will get TSA. And TSA is already given to you, that is 90 pi. Now here pi you keep it pi only. R you have to find it. L is been given as 13. Correct? So now you will get, here I have put in the values all. Let's see what we are getting. I have to open this pi you can cut. 90 is equal to R bracket 13 plus R. Now you can take it, 90 is equal to 13R plus R square. Got my point clear? Take this 90 here in subtraction. So you will get a nice quadratic equation. R square plus 13R minus 90 is equal to 0. Solve this quadratic equation. You will get 2 brackets. From there get the value of R. Correct? Now from here you will get R value. Correct? So once you got, naturally you will solve this quadratic equation. You will get 2 values of R. One will be positive, one will be negative. Don't take your negative answer, take your positive answer. So you will get radius from here. Am I correct with this? आपके हाथ में radius आ गया. आपका first part is done. Now you have to find volume. Now volume formula for a cone is 1/3 pi r square h. Now do you have height? नहीं, आपके पास slant height है, मतलब L है और अभी अभी आपके पास radius आ गया. लेकिन मैंने आपको बताया है that what we have to do? Yes, slant height L square is equal to h square plus r square. You have to put in the value of L, you have to put in the value of your R, whatever you will get it, put it and get the value of H. And once you got the height, now you have to just put in the values into your formula for volume and get your final answer for volume. Yes? Next problem we have, the area of base of a conical solid is given as 38.5 centimeter square. सो एरिया ऑफ बेस, तो अगर मैं एक कोन बना रही हूँ तो उसका ये बेस ये हो गया और उसकी एरिया दी हुई है, मतलब ये तो सर्कुलर शेप है, तो कहना है राइट पाई आर स्क्वायर की एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 38.5. करेक्ट? सो इसमें से हम लोग पहले ही यूज़ हो जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर कहीं पे. लेट्स सी, तो ये आपको वैल्यू आ गई. देन इट इज से देन इट्स वॉल्यूम इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ध्यान देना, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट? अब एच हम लोग के पास नहीं है. वी कैन फाइंड एच बिकॉज यू कैन मेक इट आउट दैट यू हैव वॉल्यूम इन योर हैंड एंड यू हैव पाई आर स्क्वायर विच यू कैन सब्सटीट्यूट हियर पाई आर स्क्वायर की जगह पे. ठीक है? तो आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 154 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 38.5 इंटू एच. करेक्ट? From there, take this 3 into multiplication here, that will be 154 into 3 and this 38.5 will come into division. Am I correct? तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी that will be called as height. तो हमारे हाथ में height आ गया. ठीक है? Then you have to find the curved surface area. Now what is curved surface area dear kids? Curved surface area हम लोग का formula है CSA का pi r l. Pi r l. Do you have L with you? No. Do you have R with you? No. But for R I can utilize this pi r square and get the value. ठीक है? हमारे हाथ में pi r square है is equal to 38.5. तो हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5. करेक्ट? और वहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना आर. आ गई बात समझ में? तो आपके हाथ में एच आ गया, आर आ गया, तो क्या आप एल निकाल सकते हो? एल का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. करेक्ट? सो वहाँ से आपका एल आ गया. माय डियर किड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशंस विल बी योर पार्ट. ठीक है? कंसेप्ट मैं समझाती जाऊंगी, कैलकुलेट आपको करना है. आपके हाथ में आर आ गया यहाँ पे.
स्टेप वाइज जाओ। आर आपके हाथ में आ गया, एल आपके हाथ में आ गया, पाई की वैल्यू डालो और सी एस ए निकालो। करेक्ट। जो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम में दी हुई है वो आपको समझनी है, और जो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम से निकालनी है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके आप जाओगे। तो दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, यू हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूलाज। ठीक है। Okay, next problem I'll take your problem number 14 is there. So we'll take 14. Problem number 14 says the volume of conical tent is given as 1, 2, 3, 2 and the area of base. It's very similar I guess. Area of base आपको दिया हुआ है और volume दिया हुआ है, सेम ही प्रॉब्लम है, वेरी सिमिलर। तो ये आपको एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ओके, दैट इज गिवन एज 154 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और उसके बाद आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज गिवन एज 1232 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमारे पास है 1232 मीटर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर में ये वैल्यू डाल दो और उसमें से एच निकालो। गॉट माई पॉइंट? क्लियर। और पाई आर स्क्वायर जो दिया हुआ है उसमें पाई की वैल्यू डालो और आर निकालो। वही प्रॉब्लम है, सेम ही प्रॉब्लम आ गया है। तो आर यहाँ से मिल जाएगा, एच यहाँ से मिल गया, एल कहाँ से फाइंड करोगे? तो एल हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे और यहाँ से एल आ गया। गॉट द पॉइंट? क्लियर। हाइट आ गया, रेडियस आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट पूछा है लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। तो भाई आपका विड्थ दिया हुआ है और आपको लेंथ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो एरिया फाइंड कर देंगे। तो आप क्या करोगे? अच्छे से क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि कॉनिकल टेंट है तो नीचे से हम लोग नहीं बिछाएंगे, उसके ऊपर का जो कैनवास है वो सिर्फ ऊपर के क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वहीं पे आपका कैनवास आता है। नीचे आप टेंट देखा है आपने, कैनवास कहाँ पे आता है? तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे आता है ना, कर्व्ड एरिया पे। तो आपको सिर्फ सी एस ए लेना है। सी एस ए आपका आ जाएगा पाई आर एल, आपके पास सब कुछ है अभी, एल भी आपके हाथ में, आर भी आपके हाथ में। जैसे ही सी एस ए आ जाता है आपको डिवाइड करना पड़ेगा विड्थ से। डिवाइड करोगे विड्थ से। क्यों विड्थ से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमको लेंथ चाहिए। गॉट माई पॉइंट? और लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया। तो हमारे पास एरिया है ऑलरेडी, हमने एरिया फाइंड की है, ब्रेथ मतलब विड्थ। इसको डिवीजन में लेकर जाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? लेंथ की वैल्यू आएगी। क्लियर? नेक्स्ट आई हैव टेकन वन ऑफ योर एग्जाम्पल, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड। अगेन आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो ये याद रखना कि विड्थ दी हुई है, हमको पहले सी एस ए फाइंड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय विड्थ करना पड़ेगा ताकि लेंथ आ जाए। ओके। अब आपको डायमीटर दिया हुआ है 12, तो आपके हाथ में क्या क्या आ रहा है हम लिखते जाएंगे पहले। सो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। 63 इज अ स्लांट हाइट, तो आपके हाथ में स्लांट हाइट एल की वैल्यू भी दी हुई है 63। चलो इजी हो गया। तो एरिया सी एस ए अगर हम लोग को चाहिए तो सी एस ए तो होता है पाई आर एल, हमारे पास आर भी है, एल भी है, और पाई की वैल्यू तो हमेशा हमको पता है दैट इट इज 22/7। सो वी विल पुट इट दीज वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ सी एस ए, करेक्ट। तो सी एस ए आपके हाथ में आ गया। सी एस ए मतलब एरिया आ गई, और मैंने क्या कहा था? एरिया को विड्थ से डिवाइड कर देना ताकि आपको लेंथ मिल जाए। तो यही एरिया को आप क्या करोगे? विड्थ कितनी दी हुई है? 2 मीटर, उससे डिवाइड कर दो तो आपको लेंथ आ जाएगी। क्लियर? अब आगे कुछ बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट अ रेट ऑफ 150 पर मीटर। जब हम कपड़ा लेने जाते हैं, क्लॉथ लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम बोलते हैं मीटर वाइज इसका रेट क्या है। हम विथ वाइज रेट नहीं पूछते, ब्रेथ वाइज रेट नहीं पूछते, हम मीटर वाइज रेट लेते हैं। गेटिंग? अगर 3 मीटर की हमको ड्रेस बनानी है तो हम 3 मीटर का रेट पे करते हैं। तो उसी तरीके से आपको कैनवास का लेंथ आ गया, मतलब कितना मीटर आपको लगेगा उसका कॉस्टिंग दिया हुआ है 150। तो लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में?
एग्जाम्पल से है, रेडियस ऑफ बेस और एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 7 and 24, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। वॉल्यूम तो हमें पता है दैट इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद हम लोग को टोटल सरफेस एरिया भी पता है टीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, और अगर इसमें से मैं पाई आर कॉमन निकालती हूँ तो अंदर बचता है एल प्लस आर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो आपके पास तो सब कुछ दिया हुआ है, सब बस वैल्यूज डालते जाना है। गॉट माई पॉइंट क्लियर? योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 मीटर हाई। तो एक कोन है, उसके मेजरमेंट्स हम लोग लिखते हैं। हाइट है उसकी 3.6 मीटर और रेडियस है उसके बेस का 1.6 मीटर सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, बोथ आर सेंटीमीटर, एंड इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ सर्कुलर कोन विथ रेडियस एज 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ने मेल्टिंग और रिकास्टिंग किया है, तो ये दूसरा कोन बन गया, उसका रेडियस दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब जब भी मेल्टिंग और रिकास्टिंग होता है तो ध्यान रखना, यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वॉल्यूम। एक कोन में से दूसरा कोन बनाया है तो नेचुरली जो इसका वॉल्यूम होगा मटेरियल का, इसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा इसके वॉल्यूम के। एम आई करेक्ट विद दिस? सो यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। और आपको फॉर्मूला तो आता ही है। व्हाट इज फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो दोनों के लिए सेम है, 1/3 दोनों के लिए सेम है, तो कट कर दो। लेकिन इसका रेडियस है 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू हाइट दी हुई है 3.6, वो लिख देंगे। और इसका रेडियस हमारे पास है 1.2, तो हम लिख देंगे 1.2 इंटू 1.2, और इसकी हाइट फाइंड करनी है। इजी, आपके पास ये सब है और ये दोनों है। अब इन दोनों को आपको यहाँ पे लेकर जाना है सिर्फ। यू हैव टू जस्ट टेक दिस इनटू डिवीजन and you will get the value of height. Easy?